हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। ओके। तो what I was What I was discussing, discussing, the the tutorial tutorial 4 have been 4 have discussed. been I think discussed. I 4 to think 5, 4 to 5, 5 to 6 question 5 to have been 6 discussed. questions have been discussed. So Now we will try to now we will try discuss to discuss the further the questions. further questions. Okay. Okay. So I'm So I'm sharing. Just just wait. sharing. Just wait. Is there any So issue is there any regarding issue regarding the discussed question that the discussed question, the tutorial 4? hello? Hello. Those questions Those which we questions have discussed. which Is we there have any issue discussed. regarding these Is questions? there any issue regarding these questions? क्लास आवाज आ रही है? क्लास आवाज आ रही है? हाँ सर। सर, जो आप बोल रहे हैं वो बार बार रिपीट हो रहा है। हेलो? हेलो। यस सर, अब आ रही है। Again it is repeating or not? नो सर, नॉट रिपीटिंग। वो आपके दो आईडी से लॉगिन है ना, तो दोनों में माइक ऑन था। Okay, okay. So what I am saying, the questions which we have discussed earlier, that is clear or not? So I can continue with the further questions. So one of the question, before going to start the next of the tutorial sheets, basically I just want to share you that one of the question we have discussed, that is what are the different type of services into the what are the different types of services into the different layers of the OSI model. So we have discussed that what kind of communication is done in different layers, node to node, host to host, and process to process. We all have discussed in the lecture also. I think it is clear to all of you. It is clear to all of you, na? यस। Okay, okay. So that one question is also covered. Clear. So now we will discuss about further question that is based on uh, UDP also. So I'm just sharing. Just wait. Just wait. I'm sharing. Just wait.
So, is it visible to all of you? Is it visible to all of you? Yes, sir, tute sheet. Yeah. If you go through the tute sheet, clear? Just show me. So, question number 1, it is clear. That is, what is the difference between a direct and indirect delivery? This is explain types of data delivery for different layers using suitable diagram. This what I have discussed today. Clear? What are the different types of data delivery? So it is discussed. एंड इसको ही हमने बताया था, डायग्राम आपको याद रखना है, जिसमें हमने बताया था नोड टू नोड डिलीवरी, host to host delivery and process to process delivery. All are different for different system. Clear? Process to process delivery is for transport layer. Clear? And something a node to node delivery is also for data link, and then for network link, network layer. Clear? So we have discussed it. So that diagram you need to draw that. Clear? उसके बाद है third question, हम लोगों ने discuss कर ही लिया था, why routing is important in a computer network. Then fourth one, that is explain fixed or static routing algorithm, that is also discussed. Clear? Then flooding is also discussed. What is flooding? Flooding is the category of the static type of algorithm. Clear? And then what is congestion? Congestion is also discussed. When what are the different congestion control techniques? ये सारी चीजें हम लोगों ने discuss कर ली थी. Question 6, 7 is also discussed. 8 is also discussed. Leaky bucket and token bucket algorithm. Then the ninth one was what was it? Explain internetworking. Internetworking भी हमने आपको बता दिया था क्या होता है. Clear? यहाँ तक किसी को doubt? नहीं. Is there any doubt? Okay. These all questions have been covered. So उसके बाद हमने आपको I have also shared you the solution regarding this. Solution in the sense is what the PDF related to that particular topic I have already shared. So you all have visited on the Google Classroom, I think. Have you all visited on the Google Classroom regarding the documents that belong to Unit Yes, 4? sir. Okay. So if you go through the documents, you will see the content regarding that. Clear? So you get the questions and solutions with the particular topic relevant to the tutorial 4. Clear? If you go through, and these also I have discussed in the lectures also. Clear? Now if we talk about the IP packets related question, that is IPv4 and IPv6, which is discussing right now. Clear? So question number 10 देखिए आप लोग, what are the difference between classful addressing and classless addressing? This is also discussed. Am I right? Yes, sir. सर जो 13th वाला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग तो पहले बाइट देखेंगे, जैसे 208 है, उससे फिर क्लास निकाल देंगे. हाँ, जो हमने बताया था, जो फर्स्ट बाइट को चेक हाँ करते सर. हैं. फर्स्ट बाइट बाइट के चेक. फर्स्ट बाइट में हमने आपको रेंज बताई थी. ठीक है? जी सर. जैसे बाइनरी के लिए अलग तरीका बताया था. बाइनरी में बाइनरी नंबर्स के हिसाब से देखते थे. फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, ऐसे करके देखते थे. तो क्लास ए है तो फर्स्ट देखते थे, क्लास बी है तो 2 बिट का देखते थे, क्लास 3 है तो 3 का देखते थे. ऐसे ही जो हमारा डेसिमल डिजिट होगा, डेसिमल में भी यही काम करेंगे. रेंज देखेंगे, है ना. वी हैव टेबल हमने देखी थी ना, टेबल आपको हमने पीडीएफ में शेयर करी हुई, पीडीएफ में है, वो देख लीजिएगा. बट टेबल से जो रेंज है, उस रेंज के अकॉर्डिंग हम क्लास डिसाइड करते हैं. क्लास ए है, क्लास बी, जिस रेंज में भी वो फिगर लाई कर रहा होगा, वो क्लास को डिसाइड करेगा. इज इट क्लियर? यस सर. ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको करा भी दिए थे कि कौन सी किस कैटेगरी में कौन सा क्लास डिफाइंड है. तो हमने आपको दो न्यूमेरिकल कराया भी था इससे रिलेटेड. ठीक है? इसके बाद फिर ये सारे क्वेश्चन क्लास वाले हो ही जाएंगे. क्लास आप लोग क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये सब आप देख ही लेंगे. ठीक है? उसके बाद IPv6 का ड्रॉ करना है और एड्रेसिंग, और उसको एक्सप्लेन करना है. सो दिस वाज डिस्कस टुडे. क्लियर? IPv6 हम लोग आज डिस्कस किया था लेक्चर में. तो ये आपको वहां से मिल जाएगा.
और इसके बाद है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ IPv4 एड्रेस। तो जो हम लोग डिफरेंसेस हैं हमारे पास IPv4 एंड IPv6 के, वो डिफरेंसेस से आपको पता चल जाएगा व्हाट आर द लिमिटेशन इन IPv4 व्हिच इज ओवरकम इन द IPv6 प्रोटोकॉल। क्लियर, यहाँ पे भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ IPv6 ओवर IPv4, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा कि क्या कमियां थी IPv4 में जो हमने IPv6 में ओवरकम कर ली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। 14 देखिए, 14 है एक्सप्लेन IP हेडर इन इंटरनेट प्रोटोकॉल विद सुटेबल डायग्राम। दिस इज आल्सो गिवन, एक डायग्राम है IP हेडर का, इंटरनेट प्रोटोकॉल हेडर का, दैट इज गिवन। तो वो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, सुटेबल डायग्राम ड्रा कर दीजिए। उसमें जो जो आपके फील्ड्स कवर हो रहे हैं, वो फील्ड के बारे में तो एक एक लाइन, दो दो लाइन एक्सप्लेन करना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए मास्क इन IPv4 एड्रेसिंग। हमने आपको बताया था जो मास्क होता है जो ऑब्लिक करके लिखा जाता है। इफ यू रिमेम्बर ए क्वेश्चन जिसमें हमने आपको दिखाया था, एक क्वेश्चन में जो हमने माइनस किया था, जैसे एक एड्रेस लिखा हुआ था ऑब्लिक 28 या कुछ लिखा हुआ था, तो हमने उसको क्या किया था, 32 में से उतना माइनस किया था, तब हमने फर्स्ट और लास्ट बाइट हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी। याद आ रहा होगा, फर्स्ट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस। I have discussed the question regarding first address and last address determination. याद आ रहा है? Have you remembered? एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, find the first address and last address in the given IP address of IPv4. याद आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है? नहीं सर। नहीं याद आ रहा है। हमने कहा था ना कि क्वेश्चन कराया था, if you were in the class then आपको पता होगा, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोग निकाल रहे थे कि फाइंड द फर्स्ट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस ऑफ द IPv4। और उसमें जैसे कोई एड्रेस दिया है, मान लीजिए यही एक एड्रेस दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13 में 208.34.54.12 ऑब्लिक 28 करके लिखा हुआ था। ठीक, तो जैसे हम क्या करते थे, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, मैं इसी पे करके बता देता हूँ। जस्ट वेट, आई एम ड्रॉइंग दिस। Just wait, I am doing. Just wait, I am doing. Just wait. PDF दिख रही है सभी को ये? This PDF Yes. is visible to all of you? इसी में वो क्वेश्चन है जो मैं फिर से दिखा देता हूँ, अगर आप लोग की मेमोरी से मिस हो रहा है। देखिए, ये हमने वैसे डिस्कस किया था क्लास में। If you are missing from your memory, then I remember. Try to remember you again. देखिए, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इसके अलावा ये क्लासेस वाला जो क्वेश्चन है, ये भी एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, यहाँ से आप पहचान सकते हैं। देखिए, ये टेबल आई वाज टेलिंग यू, ये PDF हमने शेयर किया है आपको, कैन सी। इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए, जैसे अगर हम बाइनरी नंबर्स की बात करेंगे तो बाइनरी में हम यहाँ से देखेंगे, इस वाली टेबल को फॉलो करेंगे। चूंकि डेसिमल में डिजिट दिए हुए हैं तो इस वाले को फॉलो करेंगे, ठीक है ना, क्लास को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो जैसे 0 से 127 की रेंज में अगर पहला वाला बाइट आ रहा है
तो दिस विल बी इन द फर्स्ट बाइट, तो आपका पहला हो जाएगा क्लास ए एड्रेसिंग में आ जाएगा, ठीक है। और अगर यही हमारा 128 से 191 के बीच में लाई कर रहा है तो क्लास बी में आ जाएगा, और अगर ये 192 से 223 के बीच लाई कर रहा है तो क्लास सी में आ जाएगा। यस सर। ऐसे ही 224 से 239, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है। ऐसे ही ये टेबल आपको माइंड में रखनी है। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम जीरो, जैसे फर्स्ट बाइट अगर हम देखेंगे, फर्स्ट बाइट में पहली बीट अगर जीरो है, बाइनरी की बात कर रहा हूँ, अगर बाइनरी में गिवन होता फर्स्ट बाइट में पहली बिट अगर जीरो है तो क्लास ए एड्रेस हो जाएगा, अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अगर फर्स्ट बाइट में दो बिट्स स्टार्टिंग 10 है, इट विल बी क्लास बी एड्रेसिंग, ठीक है। फर्स्ट बाइट में स्टार्टिंग में 3 बिट 110 है तो क्लास सी एड्रेसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बाइनरी के बेसिस पे पहचानते हैं। तो चूंकि वो डेसिमल में क्वेश्चन दिया है तो आपको सीधे ये वाली टेबल फॉलो करनी। क्लियर? इज इट क्लियर? यस। ओके, तो फर्दर मैं आपको वो बता देता हूँ जो आपसे सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था। फर्स्ट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस, नो, आई एम जस्ट शोइंग यू, जस्ट वेट, इफ यू फॉलो दैट। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? उसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल के फिर उसके बाद में उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे ना, फर्स्ट और लास्ट के लिए। एक बार ऐड करते थे, एक बार सब्ट्रैक्ट करते थे। नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते थे, वो दूसरा मेथड था। हमने दो मेथड बताए थे इसमें, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट एड्रेस निकालने के लिए। तो उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करते थे, उसमें एक बार और ऑपरेशन करते थे, एक बार एंड ऑपरेशन करते थे। वो सेकंड मेथड था जो हमने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग उसको अगर फॉलो करते थे, क्या नाम है, जैसे हमने आपको बताया था, जैसे सबनेट मास्क आपने फाइंड माइनस कर लिया तो सबका जो सबनेट मास्क है, सबनेट एक मास्क का एड्रेस हो गया, ठीक है, और एक गिवन आईपी एड्रेस हो गया जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो अगर हम उन दोनों को और कर देते थे, ठीक है, तो हमको दूसरा दे, वो भी मैं दिखा देता हूँ, वो भी मेथड इसी में गिवन है। एक बार और करते थे, एक बार एंड करते थे, आंसर उससे सेम आता था, लेकिन वो मेथड आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दैट वाज द लेंदी एज वेल एज उसमें गलती होने के चांसेस है। तो उससे भी आसान मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो हमने बताया था। ये देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें फर्स्ट एड्रेस निकालना है, ठीक है। देखिए ये ऑब्लिक करके 28 दिया हुआ है, दिस इज क्लियर? ये एड्रेस दिख रहा है? दिस एड्रेस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? तो देखिए इस एड्रेस में जो ऑब्लिक 28 लिखा हुआ है, ये जो है ये मास्क एड्रेस है। जो ऑब्लिक वाला पोर्शन है जिसको बोलते हैं मास्क एड्रेस, ठीक है। बाकी जो 205.16.37.39 है, ये आपका गिवन आईपी एड्रेस है, IPv4 एड्रेस। ऑब्लिक 28 इज द मास्क एड्रेस, ठीक। अब हमें मान लीजिए निकालना है कि क्या कहते हैं कि इसका फर्स्ट एड्रेस। तो हम पहले क्या करेंगे, टोटल 32 बिट का हमारा IPv4 की एड्रेसिंग होती है। 32 में से मास्क को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 32 माइनस 20 करेंगे, 28 करेंगे, ये 28 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये जो 4 आया, ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट के 4 बिट्स को। जो भी एड्रेस गिवन है उसमें उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया पहले। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो लास्ट 4 बिट बचा, ठीक है, मत बैठ, लास्ट का जो 4 बिट बचा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग जो है या तो जीरो में कन्वर्ट कर देंगे या 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कि फर्स्ट एड्रेस फाइंड करना है, तो लास्ट के 4 बिट को हम जीरो में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले तो ये जो गिवन एड्रेस था 205.16.37.39, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 32 माइनस 28 किया तो 4 आया। तो लास्ट के 4 बिट्स को जीरो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लास्ट की 4 बिट्स कौन सी हैं? ये वाली हैं, 011। तो इसमें एक तो ऑलरेडी जीरो है तो उसको जीरो करने की जरूरत है, वो ऑलरेडी जीरो है। बाकी जो लास्ट के 3 1 है उनको जीरो बना दीजिए। तो देखिए हमने जीरो बना दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0000। अब इस पूरे नंबर को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, डेसिमल में अगेन, तो आपको ये एड्रेस मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एड्रेस। इज इट क्लियर?
जी सर। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। तो जो भी ऑब्लिक में दिया होगा 32 बिट का IPv4 एड्रेस होता है, उसमें से मास्क एड्रेस जो ऑब्लिक में दिया उसको माइनस कर देंगे। जो भी डिजिट आएगी उतने डिजिट को आपको लास्ट में, जैसे 4 आया तो 4 डिजिट को हम 0 बनाएंगे या 4 डिजिट को 1 बनाएंगे। अगर चारों डिजिट को हमने 0 कर दिया तो वो आपका फर्स्ट एड्रेस बन जाएगा, और अगर चारों डिजिट को 1 कर दिया लास्ट में तो वो आपका लास्ट एड्रेस बन जाएगा। इज इट क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर, No, डाउट। ठीक है, तो ऐसे लास्ट एड्रेस वाला भी पार्ट है इसमें। ये हमने आपसे डिस्कस किया था, आई थिंक आपके माइंड से स्किप कर गया ये चीजें। ये मैंने किया था डिस्कस। ये देखिए, इसके बाद जो है लास्ट एड्रेस ये का भी क्वेश्चन इसी, ये देखिए इसमें देखिए लास्ट एड्रेस पूछा गया था। ये देखिए लास्ट एड्रेस सेम क्वेश्चन में। तो लास्ट एड्रेस के लिए हम लोगों ने क्या किया, लास्ट के 4 बिट को 1 कर दिया। लास्ट के 4 बिट को 1 कर दिया। तो देखिए एक तो पहला वाला ऑलरेडी 1 था, बाकी जो 0 0 थे उनको 1 बना दिया। सॉरी, एक 0 था, 3 1 थे, है ना, बाइनरी में कन्वर्ट करने पे। तो एक जो 0 था उसको 1 कर दिया, बाकी 3 ऑलरेडी 1 थे, तो 1 1 1 1 हो गया। इसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर, वो डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आंसर आ गया। यही हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एड्रेस हो गया। इज इट क्लियर? सॉरी, लास्ट एड्रेस हो गया। इज इट क्लियर? दिस इज द लास्ट एड्रेस। जी सर। यस। तो इस तरीके से वो आपकी वो क्वेश्चन हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी भी किसी को कोई डाउट हो इसमें तो हमसे पूछ सकता है। इस तरह से ये क्वेश्चंस में अगर किसी को डाउट है तो। इन क्वेश्चंस में अगर किसी को डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है। इज देयर एनी डाउट टू समवन इन दीज क्वेश्चंस? नो। नहीं है तो ठीक है, हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी सी द फर्दर क्वेश्चंस इन दिस ट्यूटोरियल। क्लियर? जस्ट वेट, आई एम शोइंग यू। Just wait, I am showing you. Just wait.
वो तैयार होकर लगे थोड़ा 10 मिनट हो गया यार।